بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مندر عشق باش ما ہستم قسط نمبر 15 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ناول کیسا لگ رہا ہے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ وہ اس وقت دوحہ ایئرپورٹ میں اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ماموں تو واقعی آرام کرنے کے لیے پرائیویٹ روم میں چلے گئے تھے، کیونکہ اسٹے 8 گھنٹے کا تھا اور سمرن کے پاس 8 گھنٹے انجوائمنٹ کے تھے۔ وہ ہر ایک چیز کو کیمرے میں قید کیے ساری یادیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، اور صلاح الدین اپنے چشم سے اسے کیمرے کی طرح کیپچر کر رہا تھا۔ جب وہ تصویروں سے فارغ ہوئی تو صلاح الدین کی موجودگی کا بھی احساس ہوا۔ وہ تو پتہ نہیں اپنی دنیا میں کھو ہی جاتی تھی۔ ایسی عجیب عادت پہ امی ڈانٹا کرتی تھی اور واقعی سے شرمندگی ہوئی۔ ویسے یہ ایئرپورٹ تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں ہے تو صحیح، وہ مسکرا کر بولا، اور وہ کچھ زیادہ ہی نہیں مسکراتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ آج کے دن تقریباً 40 بار مسکرائے ہیں، بلکہ اسمائل آپ کے چہرے سے ہٹی نہیں ہے۔ وہ اس کی عجیب بات پر ہنس پڑا۔ وہ واقعی کبھی زندگی میں اتنا ہنسا یا مسکرایا بھی نہیں ہوگا جتنا کہ آج۔ وجہ بہت ہی خوبصورت تھی، یہ بات وہ دل میں دبا گیا، لیکن آنکھوں کی گستاخی کو کون روکتا جو اس کے دلکش نقوش کا پہرا کر رہی تھی۔ ویسے آپ کو نہ پلین کے کھانے کا کچھ نظام بدلنا چاہیے۔ یہ کیا دیتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم پلین میں نہیں کسی ہاسپٹل روم میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہمیں ایسا کھانا دیا جاتا ہے جیسے ہم پیسنجر نہیں مریض ہیں۔ ایک دن کی تو بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی پائلٹ ہوں، ہیڈ آف ایئر لائن نہیں۔ وہ مزے سے بولا۔ ایک دن میں ایسا کھانا کھانے سے کوئی مر بھی سکتا ہے؟ صلاح الدین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ سمرن کو لگا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ میرا مطلب ہے ایسا کھانے سے دل خراب ہو سکتا ہے، اور دل خراب ہونے سے بندہ مر بھی سکتا ہے، کیونکہ آپ کا دل آپ کے پورے جسم کا نظام سنبھالتا ہے۔ وہ اپنے کہکے کو روک نہیں سکا۔ کون سی کلاس میں ہو؟ جب وہ کھل کر ہنس پڑا تو پھر بولا۔ سمرن نے گھورا اسے۔ اپنے مذاق بننے پر بہت غصہ آیا۔ فرسٹ ایئر کے ایگزام دیے ہیں، اب سیکنڈ ایئر میں جاؤں گی؟ ارے اتنی چھوٹی سی اور اتنی بڑی کلاس میں تو 7th 8th کلاس کی سمجھ رہا تھا۔ ہاں تو انکل الادین صاحب، آپ خود بڈھے ہیں اس لیے بچی لگوں گی۔ اتنی مشکلوں سے ان کلاسوں سے گزر کر بڑی ہوئی ہوں، اور آپ مجھے بچی کہہ رہے ہیں؟ وہ بگڑ کر بولی۔ ارے عورتوں کو تو شوق ہوتا ہے ان کو کوئی ینگ کہے، یہ تو الٹا ہی حساب ہے۔ ہاں تو وہ کوئی اور ہی ہوگی، میں ایک ہی پیس ہوں دنیا میں، بالکل، اور جنرل۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے، آپ جیسی ملی بھی نہیں اب تک، ملے گی بھی نہیں۔ خیر آئیں گچی کے اسٹور پر چلتے ہیں۔ ویسے پتہ ہے اس کے ٹیگ ہوا میں باتیں کرتے ہیں۔ گچی سے یاد آیا، آپ نے وہ گانا سنا؟ گچی گینگ آف اوفلا اتنا مزے کا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ بول رہی تھی اور وہ ساری دنیا کو سائڈ پر رکھے اسے ہی سنے جا رہا تھا۔ وہ باہر جا رہا تھا جب آغا جان کی آواز پر اپنے بڑھتے قدم روک دیے۔ کمرے میں آؤ میرے۔ معذرت کے ساتھ آغا جان، فی الحال میں کسی کام سے جا رہا ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں نے کیا کہا ہے دین؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ میں جانتا ہوں آپ کہیں گے، اور میرا جواب آپ کو بھی پتہ ہے۔ وہ ابھی تک آغا جان کی طرف نہیں مڑا تھا۔ دین، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم میری پوتی پر ہاتھ اٹھاتے؟ وہ اب سختی پہ آ گئے تھے۔ ہاتھ تو بہت عام سی چیز ہے جو اس نے معصوم سی لڑکی کے ساتھ کیا، میرے بس میں ہوتا تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا، وہ پتھریلے لہجے میں بولا۔ دین، وہ دھاڑے، اگر تم اس لڑکی کی خاطر ایسی حرکتیں کرتے رہو گے تو میں اس لڑکی کی جان ہی لے لوں گا۔ سارے فساد کی جڑ وہی ہے، اور خانزادے تم مت بھولو، جلدی سے اس لڑکی کا نام بتاؤ جس سے تم محبت کرتے ہو، ورنہ تمہارا نکاح میں ہیرا سے کرواؤں گا۔ وہ یہ کیا کہہ گئے تھے؟ انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ وہ کیا کہہ چکے تھے۔ صلاح الدین کو لگا اگر وہ اسے خنجر مار دیتے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی ان کے باتوں سے ہوئی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ وہ مڑا اور ان کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جبکہ چہرے پہ زمانے بھر کی سختی آ گئی تھی، مگر وہ بولا تو دھیمے اور سرد لہجے میں۔ میں تو ہرگز نہیں بولا کہ میں خان ہوں، مگر مجھے لگتا ہے
आप सब भूल गए हैं, क्योंकि आपके अलावा कोई भी खान इतने बेरहम, इतने संगदिल नहीं होगा जितने कि आप। खान का नाम मैंने नहीं, आप लोगों की दकियानूसी सोच, अना परस्ती ने ख़राब किया है। और लोग जो आपका नाम लेते हैं, आपको अपनी आंखों में बिठाते हैं, तो आप समझते हैं वो आपकी इज्जत करते हैं। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है आगा जान। लोग आपसे डरते हैं कि आप इनकी जान, माल, इज्जत ना छीन लें, क्योंकि इनकी नज़रों में आप ये तीनों काम कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस लड़की की, यानी कि सलाहुद्दीन अली ख़ान की मनकूहा सिमरन। मारना चाहते हैं आप इसे शौक़ से मारें, लेकिन मारने से पहले गोली का निशाना आपके पोते के दिल में होना चाहिए। और हीरा से क्या किसी से भी शादी नहीं कर सकता। बेशक 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन मेरी डिक्शनरी में एक ही शादी जायज़ है, वो भी सिमरन से हो चुकी है, और इसने मुझे मुकम्मिल कर दिया है। आपको इसे बहू तस्लीम करना है तो ठीक है, नहीं करना तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इस पर जुल्म करने का इरादा है तो आई एम सॉरी, मैं इसे जहन्नुम में मज़ीद नहीं रखूँगा। आगा जान का चेहरा सुर्ख हो गया, जबकि आंखें जलने लगीं। सलाहुद्दीन ने आईना दिखाया था और वो आईना इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो एक ज़ोरदार थप्पड़ सलाहुद्दीन को मारा। अरबाज और उसामा अंदर दाखिल हुए और उन्होंने देख लिया। अरबाज के चेहरे पर सदमा आ गया, जबकि उसामा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि आगा जान अपने लाडले पोते को कभी थप्पड़ मारेंगे। सलाहुद्दीन ने अपना जबड़ा पकड़ा। इसे कोई दुख कुछ महसूस नहीं हुआ, बल्कि वो बिल्कुल खामोश सपाट तासुरात लिए इनको देख रहा था। इससे पहले वो कुछ कहते, सलाहुद्दीन ने तेज़ी से वहाँ से निकला और अपने कमरे में आया और बैग पैक करने लगा। उसने फैसला कर लिया था कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता। देखा ये बैग कितना महंगा है और वो इतना छोटा सा। मैं कहती हूँ कि इतने में तो बैग्स की फैक्ट्री खोल लूँ, इसे ख़रीदने से बेहतर है। वो छोटा सा अपने कपड़ों से मैचिंग करता बैग दिखा रही थी और फिर इसे रखते हुए कहने लगी, ऐसे अच्छा है, ले सकती हो। सलाहुद्दीन को बैग अच्छा लगा था। मैं कोई नहीं ले रही, बिल गेट्स की औलाद थोड़ी हूँ। अल्लाह, इतने प्यारे शूज़, वो सिल्वर कलर के हील्स जो दूर से ही अपनी चमक दिखा रही थी, इसकी तरफ बढ़ी और इसे देखने लगी। उफ़, कितने प्यारे हैं। सलाहुद्दीन वैसे ही शॉप्स को देखने लगा। इसने मोरे के लिए कुछ लेना था। फ़िलहाल वो बाकी के लिए कुछ ना कुछ ले लिया करता था, लेकिन मोरे के लिए कुछ बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें हो जो वो इस्तेमाल करें। इसने देखा, बेख्तियार नज़र खूबसूरत से सफ़ेद असली मोतियों से बने कलश पर पड़े, जिसके ओपनर पर एक शीशे से बना एक गुलाब था। सलाहुद्दीन को बहुत अच्छा लगा। इसने सामने खड़ी लड़की को इसकी को पैक करवाने को कहा, और सिमरन को जो ग्रीन बैग पसंद आया था वो भी। फिर वो इसकी तरफ आया जो हसरत से हर चीज़ को देख रही थी। सलाहुद्दीन की आवाज़ पे मुड़ी, फिर बोली, चलें, याद आया परफ्यूम लेना था मुझे। हाँ चलो। वो मुड़ा तो क्रेडिट कार्ड, फिर वो दो बड़े बड़े बैग उठाए। सिमरन को मुंह खुल गया, इसने शॉपिंग भी कर ली। ये पायलट तो कुछ ज़्यादा ही अमीर था। सलाहुद्दीन मुड़ा तो इसने अपने हैरत से खुलते हुए मुंह को तेज़ी से बंद किया। अगर आप माइंड ना करें तो आप ये पकड़ सकती हैं। वो इसे बैग पकड़ाते हुए बोला, आपके हाथ टूटे हुए हैं। वो घूर कर बोली, गुस्सा आया, ये खरीद सकता है वो नहीं। अरे नहीं, वैसे ही कहा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा रहने दें, आप शर्मिंदा ना करें, वो पकड़ते हुए बोली, और वो अपनी मुस्कुराहट दबाने लगा। दरवाजे पे दस्तक हुई। मोरे ने जाकर दरवाज़ा खोला तो ताई धक्का देकर अंदर आई। सिमरन बैठी हुई थी। इनको देखते हुए डर कर उठी। अरे भाभी, ताई ने बढ़कर सिमरन को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। कमीनी, डायन, पहले मेरा बेटा छीना, फिर मेरी बेटी का हक छीना, अब मेरे दीन को दूर कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब इसका गला दबा रही थी और मोरे पीछे से इन्हें खींच रही थी। भाभी, छोड़ें इसे, छोड़ें। सिमरन को तकलीफ़ हो रही थी। इसकी आंखों में पानी जमा होकर बाहर आने लगा। वो अपने आप को बचाने के लिए चीख भी नहीं सकती थी। मोरे तेज़ी से सलाहुद्दीन को बुलाने लगी कि हीरा अंदर आई और इन्हें खींचते हुए बाहर निकालने लगी। अरे क्या कर रहे हो चाची जी, मोरे को डिस्टर्ब ना करें। वो बाहर निकाल कर अब अंदर घुसी और दरवाज़ा बंद करने लगी। मोरे वो झक्का
और दरवाज़ा पीटने लगी, खोलो दरवाज़ा। सलाउद्दीन पैकिंग आदि करके इन्हें तैयार करने को होने की खबर देने आया था कि मोरे को दरवाज़ा पीटते हुए पाया। मोरे, वो भागा। उन्होंने दीन को देखा तो चीखी, वो मार देंगी बच्ची को। दीन, सिमरन मर जाएगी। और दीन ने दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। अंदर खड़ी हीरा डर गई। मोरे, वो तेजी से माँ के पास आया जो सिमरन को तख्ते में मारने वाली थी। जब दरवाज़ा टूटा और दीन अंदर दाखिल हुआ तब भी ताई को होश ना आया। मेरे बेटे को मारा, तुम भी मरोगी। इसने बढ़ते हुए ने तेजी से पकड़ा और जोर से हटाया। इस चक्कर में ताई दीवार को जाकर लगी। सिमरन ने अपनी गर्दन को पकड़ा जहाँ से जख्म छिड़ जाने के बायस अब खून निकलने लगा था। वो खांसने लगी, आंखों में गर्म स्याल बहने लगा। सलाउद्दीन ने इसे सीधा किया। सिमरन, आंखें खोलो। रैनी, वो इसका चेहरा थामते हुए बोला और बाल हटाने लगा। वो इसको नहीं देख रही थी। सलाउद्दीन ने उसे उठा लिया और बोला, मोरे चलें। वो कहता हुआ इसे ले गया। वो मोरे खड़ी ही इन्हें देखने लगी जो इसके साथ क्या होने करने वाला था। वो सीढ़ियों से उतरा और आवाज़ देने लगा, दिल नवाज, जल्दी से मेरा बैग लाओ। वो कहकर चल पड़ा। सब हैरत से इसे जाता हुआ देखने लगे और वो इन्हें इग्नोर करता हुआ बाहर आ गया। अपनी कार की तरफ पहुंचा, दरवाज़ा खोलकर इसे बिठाया, इसका दुपट्टा ठीक किया, इसके चेहरे की तरफ देखा जो अपनी गर्दन पकड़े लंबे लंबे सांस ले रही थी। पानी दूँ? वो साइड बोर्ड से पानी की बोतल निकालते हुए बोला। मोरे अपनी चादर संभालती हुई बाहर आई। दीन, ठीक है ना बच्ची? दीन ने से पानी की बोतल पिलानी चाहिए। वो नफ़ी में सर हिलाती रही। पानी पियो, मेरी जान निकालने का इरादा है, वो तेज़ी से बोला। इसने बोतल पकड़ी और घूंट लेने लगी। मोरे, आप बैठे, आपका सामान आ जाएगा। दफ़ा करो सामान को, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं ठीक हूँ। वो इन्हें परेशान होता हुआ देख कर मुश्किल बोल पाई। अगर तुमने फिर बोला कि मैं ठीक हूँ तो उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा। ये सब तुम्हारी मैं ठीक हूँ की वजह से हुआ है, वो गुस्से से बोला। दीन, मोरे ने से झपटा। वो इसे घूर कर दरवाज़ा बंद करता हुआ मोरे के लिए दरवाज़ा खोला और इन्हें बिठाया। तब तक दीन का सामान आ गया था और दीन ने डिग्गी खोली और फिर ड्राइविंग सीट पर आया और इसे देखा जो सर झुकाए बोतल को थामे रो रही थी। वो मोरे की परवाह किए बिना इसके कानों में सरगोशी करने लगा। रोना बंद करो, मोरे का भी लिहाज नहीं करूँगा मैं। इसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे वो अपनी आंखें जल्दी से साफ करने लगी। अदीन ने इसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से कार रिवर्स करने लगा।